PRATHAM Test Prep. Welcome to each and everyone here who is watching this YouTube session. And this is another daily news analysis that is very important for the students who are preparing for CUET, when we're preparing for CLAT and AILET exam. As we know that the newspaper is playing a vital role for everyone preparation. So what we need to do, we have to good command over the newspaper so that it will be very easy for you to solve the questions. So as we know, okay, so before starting the session, we will discuss about the daily quote of the day. Little progress each day adds up to big results. So try to follow the something like the news in the daily basis so that it will be very easy for you to inculcate all these things, and try to improve your ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. So try to develop your own skill, because this is very important, irrespective of the students, a mediocre student, intelligent student, and a student who thinks कि वो बहुत कमज़ोर है and all. So we have initiated questions of the day also. So at the end of YouTube session, daily news analysis, we discuss about 3 to 5 questions. Try to solve the questions as much as possible, because we cannot say कि सारे questions आप कर लेंगे easily solve, but हाँ कुछ questions आपको ऐसे solve करनी है, because you have to develop such kind of temperament that is important for competitive exams, because gathering information and solving questions, they two are different things. So here we go, and the news is videos on 10 YouTube channel blocked for hate speech. So this is what exactly is, because as we know, and what the rules and regulations for our country, because the blocked video had a cumulative viewership of more than 1.3 crore, and this is for the hate speech. Hate speech, which means we can say that content included fake news and mock video with the intent of spread hatred among religious communities. Some videos were used to spread disinformation on issues related to Agnipath schemes and Kashmir says IB ministry, something like. So why which IT Act is responsible for blocking all these YouTube channel, and what exactly is hate speech? There is nowhere in the constitution it has mentioned the hate speech, but how the power is given to the Indian Constitution to do this? So simply we can say Article 69A Information Technology Act क्या हमें बताता है ये? It confers on the central and state government the power to issue directions to intercept, monitor or decrypt any information generated, transmitted, received or stored in any computer resources. So basically the ground on which these powers may be exercised are in the interest, sovereignty and integrity of India. Sovereignty and integrity of India, and sovereign, the word which has enshrined in our preamble also. So in the interest of sovereign and or integrity of India, defense of India, the security of the state. So the state have a power to, government of India have a power to do this. Further moving, we can say Article 69A has similar reasons for the ground of state above. And in India, Information Technology Act 2000 as amended from time to time, because as we know, at the time of framing constitution there was no such rules, because on that time there was no origin of internet also. So in India, the Information Technology IT Act 2000 as amended from time to time governs all activities related to the use of computer resource. It covers all intermediaries who play a role in the use of computer resources and electronic records. So this is what about the article is. Do not try to go in too much depth, because this is not needed. Next we go to the experimental spacecraft to clobber asteroids. As we know, the NASA DART mission. What exactly was DART mission? क्या था इनका DART mission का प्लान? इन शॉर्ट इसे आगे से समझने की कोशिश करें कि वाइट इज इन न्यूज़. देखो, नासा ने प्लान किया हुआ था कि डार्ट मिशन जो एस्टेरॉइड्स है, हम एक चीज़ समझेंगे पहले. एस्टेरॉइड्स क्या है, डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, नासा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे. इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इम्पैक्ट है डार्ट का मतलब हो गया इसका, आप इसे फुल फॉर्म अगर लिखें तो डार्ट विच मीन्स वी कैन से double steroids
रिडायरेक्शन टेस्ट, डबल स्टेरॉइड्स रिडायरेक्शन टेस्ट, ये होता है हमारा डार्ट, DART, डबल स्टेरॉइड्स रिडायरेक्शन टेस्ट। तो डार्ट का मतलब आपको पता है कि जो मार्स और जुपिटर के बीच की लाइन होती है उसको हम कहते हैं, बाकी में से समझेंगे इसे। ये जो हमारा डिमॉर्फोज है, डिडीमॉस है, डिडीमॉस विच मीन्स एक बहुत बड़ा जाइंट एस्टेरॉइड्स था। ये हमने बनाया क्यों था, इसमें नासा एक एक्सपेरिमेंट कर रही है इसमें। फॉर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेव द वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट, नासा इज अबाउट टू क्रैश इनटू मिनी एस्टेरॉइड्स ऑर्बिटिंग अ लार्ज वन इन एन अटेम्प्ट टू चेंज इट्स ट्रेजेक्टरी। इसकी वेट कितनी है एस्टेरॉइड्स की, 570 kg। विद द कैमरा ऑन बोर्ड टू टेक images, the asteroids on approach will slams into roughly 5 billion kg of asteroids. स्पीड कितनी थी इसकी, 22,500 किलोमीटर पर आवर। Unless DART misses, NASA puts the odds to the happening at less than 10%, it will be end of road of DART. Asteroids target dimorphos जो है हमारा about 7 million miles तक है from Earth से। ये क्या हुआ, collision हुई उनकी। इससे बेनिफिट क्या था, नासा ने इंसिस्ट किया था देयर इज अ जीरो चांस ईदर एस्टेरॉइड विल थ्रेटन अर्थ नाउ और इन द फ्यूचर, दैट्स व्हाई द पेयर वाज पिक्ड। मिशन क्या है इस एम का, नासा इज अटेम्प्टिंग नथिंग लेस देन अ फुल स्केल प्लानिटरी डिफेंस एक्सपेरिमेंट। द इम्पैक्ट शुड बी जस्ट इनफ टू नज द एस्टेरॉइड्स इनटू अ स्लाइट टाइटर ऑर्बिट अराउंड द कंपेनियन space rock, demonstrating that if a killer asteroids ever hits our way, we would stand a fighting chance of diverting it. ये collision schedule हुआ 26 को यहाँ पे 160 मीटर। डिडीमॉस आप देख सकते हैं मिनी एस्टेरॉइड सैटेलाइट है यहाँ पे। ये डिडीमॉस का हमारा एस्टेरॉइड्स है, ये हमारा इसकी ओरिजिनल ऑर्बिट है, ये हमारा डार्ट है यहाँ पे, विच मीन्स डबल एस्टेरॉइड्स रिडायरेक्शन टेस्ट। लॉन्च हुआ था ये नवंबर 24, 2021 को फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। लीसिया क्यूब, a mini satellite with 2 cameras has been deployed. It will fly past 3 minutes afterwards and transmit image to the earth. ये यहाँ की इमेज को कैप्चर करके अर्थ पे सेंड करेगा। सो अगर हम देखें इसे, नासा स्पेस क्राफ्ट विल क्रैश इनटू एस्टेरॉइड स्मूथ, ये इसके ऑर्बिट आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी यहाँ पे, ये इसका इम्पैक्ट था ऑल्ट्रा ऑर्बिट का। ये लीसिया क्यूब्स थे। Asteroids क्या होते हैं, Asteroids is kind of rocky metallic object, range in size from about the size of pebbles to around 600 miles to 1000 kilometer across, much smaller than planets. Planets से बहुत छोटे साइज में होती है। Orbit the sun in an area called an asteroids belt. Asteroids belts को समझने की कोशिश करें तो ये हमारा asteroids belt है। देखो इसे MJA, इसे याद रखना कि MAJ को आप ये क्यों बता रहे हो, बिकॉज ये मार्स, एम स्टैंड फॉर मार्स, जो जुपिटर के बीच में हमारा एस्टेरॉइड्स होता है। तो ये आप अर्थ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे सन से, ये हमारे सारे प्लैनेट्स होते हैं जो ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर इसे फर्स्ट स्पेस के हिसाब से देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होती है, आपने देखा होगा फर्स्ट पोजीशन पे हमारी जो यहाँ पे होती है अर्थ के फर्स्ट में आती है, वो हमारी कौन सी आती है, अर्थ के फर्स्ट में हमारी आएगी मर्क्यूरी। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी वीनस, उसके बाद होती है अर्थ थर्ड पोजीशन पे हमारे अर्थ के डिस्टेंस में। उसके बाद होती है हमारे पास मार्स, उसके बाद होती है हमारी जुपिटर। जुपिटर के बाद यहाँ भी एक ऑर्बिट होती है, इसका नाम होता है हमारे पास सैटर्न। एंड देन एक और ऑर्बिट होती है, देन इट इज नोन टू बी अ नेपच्यून। सो यहाँ पे सैटर्न, नेपच्यून, ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो होते हैं, ये जो डॉट्स बने हुए हैं, दैट इज नोन टू बी अ एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स। ये हमारे एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स हैं। एस्टेरॉइड्स बेल्ट इज मेड ऑफ बिग रॉक्स इन आवर सोलर सिस्टम लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, अगर आपसे ये पूछें कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स बेल्ट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट इज मेड ऑफ बिग रॉक्स इन आवर सोलर सिस्टम। कहाँ पे लोकेट होती है, जुपिटर एंड मार्स के बीच में। तो MAG आप याद रखेंगे, MAJ, तो विच मीन्स मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपका होगा यहाँ पे एस्टेरॉइड्स बेल्ट। सो अगर एस्टेरॉइड्स के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत जाइंट एक होता है हमारा, इसमें आपका क्रस्ट होता है, मैंटल एंड कोर। सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से फाइंड इट और क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। एज वी कैन सी, ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है क्रस्ट, मैंटल, कोर, वी कैन इजिली फाइंड इट आउट वेयर इन अर्थ के स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा एस्टेरॉइड्स फील्ड होती है हमारे पास। इसमें आपके पास C टाइप होती है, S टाइप होती है और M टाइप होती है। कार्बोनेशियस, सिलिकेट रॉकी एंड मेटालिक आयरन एंड निकल। तो ये आपके इसमें 3 टाइप होते हैं, C, S और M। ये हमारी एस्टेरॉइड्स टाइप्स होती है।
इसलिए डिडोमॉस से टकराया। तो डिडोमॉस क्या, 1996 में ये सब किलोमीटर एस्टेरॉइड्स था, बाइनरी सिस्टम दैट इज क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हैजार्डियस एस्टेरॉइड्स and near Earth object of Apollo group. The asteroids were discovered in 1996 by Spaceworks survey at Kitt Peak and a small 160-meter minor planet moon named Dimorphos. Dimorphos was discovered in 2003 due to its binary nature. The asteroids was named Didymos and Greek word twin. Didymos moon Dimorphos was the target to DART mission test to viability of asteroids impact avoidance by collision with the spacecraft, while the whole system is to be visited by Licia Cube of flyby CubeSat to witness the impact. तो ये हमारा मेन था, इज अबाउट डबल एस्टेरॉइड्स। अगर डार्ट मिशन की बात करें, नासा ने लॉन्च करी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट टू, नासा की फुल फॉर्म ये होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट टू लॉन्च इस डबल एस्टेरॉइड्स रिडक्शन टेस्ट मिशन। क्या लॉन्च हुआ था? फर्स्ट काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड ऑफ प्लैनेटरी डिफेंस वेयर अ डार्ट स्पेसक्राफ्ट विल बी कोलाइडिंग विद एस्टेरॉइड्स डिमॉर्फोस। काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड जो होती है वो इन्वॉल्व करती है सेंडिंग वन और मोर लार्ज हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट को इनटू द पाथ ऑफ अप्रोचिंग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, जो अर्थ के पास के ऑब्जेक्ट होते हैं। दिस कुड डिफ्लेक्ट द एस्टेरॉइड्स इनटू अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी स्टीयरिंग इट्स वे अवे फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल पाथ। ये डेटा कब ऑब्टेन किया था डार्ट से? ये डाटा क्रैश विल बी कंपेयर टू डेटा फ्रॉम वेरियस कंप्यूटर्स simulations run by scientists to ascertain whether its kinetic impactor method will be remain a viable options or not. So DART mission short में we have discussed a low spacecraft है। DART is a lowest cost spacecraft, इसमें कोई इंसान नहीं बैठा होता, आप ध्यान रखेंगे। DART is a low cost spacecraft. It has 2 solar arrays and use hydrazine propellant for maneuvering the spacecraft. इसमें क्या होता है? 10 kg xenon, as we know that xenon is known to be a zero group element. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारे जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इट मींस इनर्ट गैस होती है ऐसे ही, ठीक है। तो 10 kg जेनॉन है विल बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द एजेंसीज न्यू थ्रस्टर्स कॉल्ड नासा इवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर कमर्शियल। नेक्स्ट सी इसमें काउंट करना था। नेक्स्ट सी क्या था हमारा? ये नेक्स्ट सी मैंने आपको भी जस्ट बताया था, ये एस्टेरॉइड्स की सिस्टम्स होती हैं, टाइप्स होती हैं। एज वी कैन सी इट हियर, सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप, देयर 3 टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड्स। The spacecraft carries a high-resolution image called DDMOS, reconnaissance and asteroids camera for optical navigation (DRACO). ऑब्जेक्टिव ये था कि इस मिशन को टेस्ट करने का न्यू टेक्नोलॉजी टू बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एस्टेरॉइड्स हेड टुवर्ड्स अर्थ इन द फ्यूचर। एक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो अगर फॉर फ्यूचर में अगर एस्टेरॉइड्स अर्थ से टकराए तो हमारे पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। The aim is to test the newly developed technology that would allow a spacecraft to crash into asteroids and change its course. The target of the spacecraft is a small moonlet called Dimorphos. Dimorphos मतलब the two forms, twins भी कहते हैं इसे. And Dimorphos orbits a larger asteroid named Didymos called twin. It is a suicide mission and a spacecraft will be completely destroyed. Obviously इस spacecraft में कोई इंसान होता तो वो भी यहाँ पे उसकी मौत हो सकती थी, बट ऐसा नासा को ये चीज़ पता थी, इसलिए उन्होंने किसी इंसान को बिठाया नहीं था उसके अंदर। ये डार्ट मिशन देखें आप यहाँ पे, ये डार्ट है, इम्पैक्ट ये हुआ अक्टूबर 7, 2022 एंड डिडीमून ये हमारा डिडीमॉस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिडीमॉस 65803 इम्पैक्ट इवेंट अक्टूबर 7, 2022। डिडीमून यहाँ पे है हमारा, एम लॉन्च अक्टूबर 2022, रेंडवू एंड डिडीमॉस जुलाई 2022 में इसे ये हमारा मिशन हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट वन, लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट टेक्स बिग स्टेप ऑन ट्रांसपेरेंसी। तो आरटीआई हमें इसमें क्या समझनी है कि व्हेन वाज आरटीआई वाज लॉन्च, व्हिच मींस राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें क्या था, इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं इसमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आपने देखा होगा ये 99th आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे NGAC स्टैब्लिश किया गया था, विच मीन्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको हमने लॉन्च किया था।
तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं इसके क्लैट के, अगर आप देखें क्वेश्चन तो उसमें पूछेंगे आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. The right to information is a fundamental rights under article which one? Article 19 clause 1A. तो आप ये ध्यान रखेंगे, right to information is a fundamental right under article 19A of the Indian Constitution. 1976, the Raj Narayan versus State of Uttar Pradesh case, the Supreme Court ruled that right to information will be treated as a fundamental right under Article 19. The Supreme Court held that in Indian democracy, people are masters and they have the right to know about working of the government. हमारे पास एक सिटीजन के पास राइट्स होती हैं कि आप हमारी सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जानने के लिए. द सेम थिंग दैट अरविंद केजरीवाल द दिल्ली चीफ मिनिस्टर वाज डन, एंड उसके बाद उन्हें आपने देखा होगा रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट which enshrined in our constitution article 19 clause 1. So government enacted the right to information act in 2005 में enact किया था, which provides machinery for exercising the fundamental rights. So being a citizen of our country, the person have a rights to know about what the government is doing and where our resources is utilizing. The Right to Information Act 2005 में act is one of the most important acts as empowers ordinary citizens to question the government and its working. This has been widely used by citizens and media to uncover corruptions, progress and government work, expenses related information. And that is very, very important if you wish to think about the welfare and well-being of the people. Because all constitution authority, agencies, own and control also those organizations which are substantially financed by the government comes under the purview of the Act. The Act also mandates public authorities of the union government or state government to provide timely response to the citizens' request for information. So somehow we can say that every citizen of our country having rights to ask about the where is my tax money. So that is comes under Right to Information Act 2005. And as we know that this act also imposes penalty if the authority delay in responding to the citizens in a stipulated time. तो इसमें अगर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट को एक टाइम ड्यूरेशन दी गई है, विद इन उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको उसे क्या करनी होती है, बतानी होती है वो चीज़. What type of information can be requested through RTA? The citizens can seek any information from the government authorities, that is, government can disclose to the parliament. Some information that can affect the sovereignty and integrity of India. For example, आप समझो, आप अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखते हो कि आपकी रॉ जो एजेंसीज है हमारी इंडिया की क्या है, एक तरह हमारी इंडिया की वो है इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसी हम जिसे कहते हैं. जैसे रॉ हो गया हमारा, IB हो गया विच इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो विच इज़ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो अगर आप ये पूछते हो कि ये मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, इसमें कितना पैसा आप खर्च करते हो, तो ये कंट्री के सोवरेनिटी के अगेंस्ट होगा. ठीक है, तो सम इन्फॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ RTA. इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें आप नहीं पूछ सकते. रिलेटिंग टू द फॉरेन कंट्रीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR, कैबिनेट डिस्कशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द RTA. ये सारी चीज़ें आप ITR में काउंट नहीं होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में काउंट नहीं होगी आपकी. आप इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, बिकॉज इफ द गवर्नमेंट इज रिवीलिंग माइट बी दैट सच इन्फॉर्मेशन कैन बी इजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड द अदर countries, the other enemy country, we can say that can take information how the ministry, how the internal security is working in our country, that is against the sovereignty and integrity of our country. So that's why that is exempted from the purview of RTA. Empower citizen क्यों करना questions to the government. The act promotes transparency and accountability in the working of the government. The act also help in containing corruptions in the government and work for the people for a betterment. तो ये इसके objectives. This is what about RTA. Next one we talking about a push for the semiconductor industry. What is India modified incentive schemes for the chip making sector? How is different from the earlier policy and what are the difficulties faced by the industry? Semiconductor हमारा क्या होता है? First we need to understand what is semiconductor. Semiconductor are the thumbnail size building blocks of almost every modern electronic device. जितने भी आपके phones होते हैं, जितने आपके कंप्यूटर होते हैं, सब में आपका ये semiconductor यूज़ किया जाता है. तो semiconductor क्या होता है? एक chip टाइप की बनी होती है. The semiconductor chip making process is complex and highly enacted, having multiple steps in the supply chain such as designing software for chips and planting or patenting through the core intellectual property rights. Electronic or IT ministry के according semiconductor demands in India would increase $70 to 80 billion by 2026 with the growing demand for the digital devices and electronic products. Modified scheme that provides uniform 50% fiscal support for all nodes
Beside, it will provide 50% of capital expenditure for other steps, and process will develop chip design and ATMP. While the new scheme provides equal funding for all steps of the process, the outlay of the schemes remains $10 billion. Notably, just the setting of one semiconductor fab requires an investment of anywhere between $3 to $7 billion. हमें क्या समझनी है इसमें? सेमीकंडक्टर बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इसमें हमें इन शॉर्ट ये समझनी है कि ये क्या है हमारा। देखो, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हमारा होता है इज एन आर मटीरियल विच हैव ए कनेक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, सिंपली आप उसे कंडक्टर कह सकते हो। सो सेमीकंडक्टर विच मीन सेमीकंडक्टर आर मेटल्स विच हैव अ प्रोडक्ट conductivity between conductors, generally metals, because metals having good conductors. Because metals की कोई definition नहीं होती, उसकी characteristics होती हैं। All the metals having a good conductors of heat and as well as electricity, except Hg, which means mercury, वो नहीं होती। वो metal है लेकिन उसमें वो good conductor नहीं है हमारा। तो generally metals इसलिए word हमने use किया। And non-conductors or insulators such as most ceramics, semiconductors can be pure elements such as silicon or germanium, और कंपाउंड सच एज गैलियम, आर्सेनाइड और कैडमियम सेलाइड। तो ये सारे हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं। सेमी कंडक्टर मतलब विच वी नॉट अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, दिस वी कैन से। प्योर एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट क्या होती है? एलिमेंट बेसिकली यहाँ जो एलिमेंट वर्ड यूज किया, एलिमेंट क्या होता है हमारा? एलिमेंट इज वी कैन सी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी मीन्स, दैट इज नॉट टू बी अ एलिमेंट। जैसे आपके कार्बन हो गए, जैसे आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, जैसे आपके यहाँ पे सोडियम हो गए, जैसे आपके यहाँ पे मैग्नीशियम हो गए, जैसे आपके एल्युमिनियम हो गए, सारे क्या हमारे? ये हमारे सारे एलिमेंट है। कनेक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द ईज एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज और हीट कैन बी पास थ्रू एन मटीरियल। सो वी कैन से दैट कनेक्टिविटी का मतलब हो गया कि यहाँ पे किस क्या होती है कनेक्टिविटी, विच मीन्स कनेक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द ईज एट विच द इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रही है नहीं, या उसमें हीट पास हो रही है नहीं, दैट इज नॉट टू बी एन कनेक्टिविटी। तो सिलिकॉन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रख लो यहाँ पे। एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 14, ठीक है। सिंबल होती है SI। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p2 होती है। जैसे आप इसको आप निकाल सकते हो कि S एलिमेंट में, P एलिमेंट में, D में और F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। और KLMN से भी निकाल सकते हो। अगर 14 है तो यहाँ पे 2 होगा, फिर 8 होगा और यहाँ पे 4 होंगी। तो यहाँ पे ऑटोमोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेम क्या होगा? सिलिकॉन। तो यहाँ पे ये इसका एटॉमिक वेट है। एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज होती है, हायर वैलेंस ऑक्साइड्स होती है। क्रिस्टल वैलेंस मतलब जो उसके ऑटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको जितने फिल करने के लिए चाहिए होगा वो हमारा क्या होता है? वैलेंस होती है। सो अगर आप देखिए कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है? से कंडक्टर विच मीन्स इजिली कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, सेमी कंडक्टर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट लेस देन कंडक्टर एंड ग्रेटर देन इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब डज नॉट कंडक्ट एनी करंट, हैज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ऑटोमोस्ट सेल। ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इसका तो इसमें आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे जो ये हमारा है, ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन है और जो लास्ट का ऑटोमोस्ट शेल में वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑटोमोस्ट ऑर्बिट। इसमें सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, एंड इसके पास इंसुलेटर में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है इन इट्स ऑटोमोस्ट ऑर्बिट। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। कंडक्टर फॉर्म्ड यूजिंग मेटालिक बॉन्डिंग, सेमीकंडक्टर आर नेम्ड ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसकी होती है आइकोनिक बॉन्डिंग। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैप्ड, इसमें नहीं होती है। रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसमें बहुत हाई होती है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इट हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है। इसका एग्जांपल कंडक्टर्स की जैसे कॉपर हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, ये हमारा कंडक्टर्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। सेमी कंडक्टर मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हमारे सेमी कंडक्टर हैं। माइका एंड पेपर ये सारे क्या है? इंसुलेटर है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डिफरेंस। बिफोर डिस्कवरी ऑफ सेमी कंडक्टर की जब डिस्कवरी नहीं होती तो एक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर्स परफॉर्म बाय वैक्यूम ट्यूब से होती थी। व्हाट इज वैक्यूम डायोड? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू सप्लाई होती थी। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि एटम मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स विच इज नॉन टू बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे वैक्यूम डायोड्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होती है बहुत सप्लाई होती थी, वो करंट के थ्रू होती थी यहाँ पे। और यहाँ पे हीट सप्लाई होती थी, हीटर सप्लाई होती थी यहाँ पे। ये इसका एनोड है, कैथोड एंड एनोड। ये इसकी ग्लास ट्यूब
सॉरी फॉर द डिले स्टूडेंट्स. सो इट वाज अ ग्लास ट्यूब, ये एनोड, ये हमारा एनोड, ये ग्रीड, ये हमारा कैथोड होती थी. तो हमारा ई फॉर यू इलेक्ट्रिकल फॉर यू, मतलब यहाँ पे ये डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर हम ऐसे ऐसे यूज़ करते थे. तो सेमीकंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर बाय मार्केट शेयर टोटल फाउंड्री रेवेन्यू स्टूड एट $85.13 बिलियन 2020. अब देखिए यहाँ पे ताइवान, चाइना, इन सब में कितनी अच्छी वैल्यू, हमारे कंट्री में इसकी वैल्यू बहुत कम है. नेक्स्ट इज पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन. इसमें हमें क्या देखनी है, बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट द धर्मशाला डिक्लेरेशन एम्स टू रिकॉग्नाइज इंडिया पोटेंशियल इन सपोर्टिंग ग्लोबल टूरिज्म. हमने टूरिज्म के लिए कितना काम किया है. सो इसमें हमें ये देखना है इंडिया की रैंकिंग क्या है. पूरे देखो भाई, मेरे पूरे आर्टिकल्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. आपको ये देखनी होगी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं, September 27. सो वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 को. वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व इन 27th of October, सॉरी September एवरी ईयर. ठीक है. उसके बाद हमें इसमें ये थी देखनी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रैंक दी थी, पोजीशन दी थी किसकी, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स. ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 की नहीं आई अभी. तो 46 थी 2019 में. कौन देता है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, जो रैंक देती है. इंडिया की कितनी है अभी, 4.1 स्कोर हो गई इसमें, और 2019 में इसकी पोजीशन 46 थी. इसमें नेशनल टूरिज्म पॉलिसीज़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानी पड़ेगी. इसमें ये पॉलिसी क्या एम करती है, एम्स टू गिव impetus टू डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन एंड स्किलिंग थ्रू द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल मिशन. इसके बाद इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे. तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस ऑफ द डे में विद दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन 3 to 5 क्वेश्चंस एंड देन आपको यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि कितने आपके सही हो रहे हैं. अभी साइक्लोन्स के बारे में आर्टिकल्स दी हुई थी एट द टाइम ऑफ, आपने देखा जब बहुत बारिश हुई थी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो इसके बारे में आप क्या है, साइक्लोन इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर समटाइम्स विद वेरी लो स्पीड winds revolving around it. Hurricanes, cyclones and typhoons are all tropical storm. The warm land surface temperature and ideal, sorry, okay. सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सा इसमें करेक्ट है. हरिकेन, साइक्लोन्स, टाइफून्स ऑल आर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ही होती है, ये हमारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होती है. यस, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. So cyclone is the formation of very low pressure system, very high speed winds revolving around it. Hurricane, cyclone, typhoon are all tropical storms. They all are same things but are given different names depending on where they appear. Warm sea surface temperature are ideal platform to cyclones. So warm sea surface होती है, वो हमारा एक ideal platform होती है cyclones को formations के लिए. Next one. The reference to criteria for the name selection of tropical cyclones consider the following statement. The proposed names are rotated every few years. The maximum length of the name will be 8 letters. The name should be short and readily understood when broadcasted. Yes, इसके आंसर्स क्या होंगे, बी होंगे हमारे पास. वर्ल्ड वाइड देयर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, RCMC. उसमें आपके रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर है. उसके बाद इंडिया का हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD, वन ऑफ द 6th RCMC टू प्रोवाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड स्टॉर्म सर्ज एडवाइजरी टू 13 member countries, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्केप्स पैनल. Criteria for name selection. The proposed name should be neutral to politics and political figure. Religious beliefs, cultures and gender name should be like Amphan. इस टाइप के नाम थे उसमें. It should be short, easy to pronounce and should not be offensive to any members. The maximum length of the same will be 8 letters. This proposed name should be providing along the pronunciation and voice over. So much death, destruction and devastation names are considered for the retirement and hence not used repeatedly. Next one, G4 nations के बारे में आपको बता रही थी मैंने. G4 nation, a group of 4 countries which support each other bids for permanent seats for United Nations Security Council. G4 nation include Brazil, India, Australia and Japan. बहुत easy था हमारा ये. So we can say G4 nation is only one because as we know that कि G4 nation comprising Brazil, Germany, India and Japan are 4 countries which support each other bids for permanent state for United Nations Security Council, UNSC. As we know that UNSC, United Nations Security Council, having a permanent 15 members, sorry, 5 permanent members
and 10 we can say non-permanent member. So all the permanent members of UNSC have a veto powers. So United Nations Security Council, unlike G7 where the common denominator is economy and long-term political motives, the G4 primarily aim to permanent member seats on the Security Council. So G4 nation having a 4: Brazil, Germany, India and Japan. So this is all about is the YouTube session is. So if you are new in this channel, please subscribe, comment and share. Our entire Pratham team is willing to help you out. So, and one more thing, if you are new in this channel, if you think you have learned lots of things, please share to your friends and group so that they will get advantage. I hope you enjoyed the lesson a lot. And remaining 2 days I will be on the off because of some personal reasons. So Hema ma'am will take the class at the same time at 11:30. So please stay tuned at 11:30 tomorrow so that you will enjoy the class a lot. Thank you so much. And if you're new in this channel, please subscribe. Bye bye. Take care. And we'll meet you on Monday onwards. Thank you so much and take care. Bye bye.